this session, online session on the webinar, creating an ecosystem for startups in Bihar, the role of students and faculty of IGNOU. What the students and faculty of IGNOU can do to create and promote an ecosystem for startups in the state of Bihar. That's the topic for today. Uh, Let me inform you, Mr. Ji, ki, the director of our National Center for Innovations and Distance Education, Dr. O.P. Sharma, he has also given his consent to join. Uh, what do you think? Should we get started or should we wait for him for 5 minutes? आप जैसे We कहें. can wait. हाँ, we will हम just लोग भी wait for जाएंगे. 5 minutes. वो आते ही वो थोड़ा इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स देंगे, उसके बाद हम लोग शुरू कर लेंगे. Yes, sure. हाँ हाँ please.
Good afternoon, everybody. I'm Dr. Avilash Naik, Regional Director of IGNOU Regional Center, Patna. I welcome all of you to this online session on creating an ecosystem for startups in Bihar, role of students and faculty in IGNOU. As you can see here, today we have Sri Ranjan Mistry, social entrepreneur, mentor, and innovation expert as our resource person for today. This online session is being organized in collaboration with National Center for Innovation in Distance Education at IGNOU headquarters, New Delhi. My colleague Dr. Rajiv, Assistant Regional Director, Regional Center Darbhanga, will be introducing Sri Mistry ji, our resource person for today. But before he introduces, let me tell you, I think he is the youngest entrepreneur of our times without any formal qualification that you require to be an expert in innovation and entrepreneurship. He has groomed himself as a social entrepreneur coming from a very humble background from the district of Gaya. He has reached international heights, I will definitely say, because he is a mentor for the startups in Bihar, startups in Odisha, startup in Tamil Nadu, BBIC Hyderabad, and many more. So, without wasting much time, I would request my colleague, Dr. Rajiv Kumar, Assistant Regional Director, Darbhanga, to welcome Dr. Mistry with an introduction of the Mistry, our resource person for today. Dr. Rajiv, please. अ, आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसे वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक जी ने मुझे अवसर दिया है श्री रंजन मिस्त्री जी के बारे में कुछ बताने का, हालांकि आधा काम सर ने खुद ही कर दिया है। और परिचय देने से पहले चूंकि अक्सर ये मौका मिलता है और कभी कभी हम लोग जब किसी का परिचय देते हैं तो उस परिचय को लेकर भी कई तरह की चीजें होती हैं। खासतौर से अभी चूंकि अभी लगभग 1 घंटा पहले सर ने मुझसे बोला कि इस तरह का एक परिचय देना है, तो सही में जब मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, श्री रंजन मिस्त्री जी के बारे में अगर मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि शायद आज के समय में क्या ऐसे लोग संभव हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, या अगर उनके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो जन्म है वो गया और पटना में हुआ था, जो कि टंकुप्पा एक जगह है जहां पर अगर हम बात करते हैं, जगह के बारे में इतना जरूर है कि बहुत अच्छी है, बहुत चारों तरफ से घिरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है, शायद नक्सलाइट एरिया रहा। और जिसका क्लियर अगर हम देखते हैं बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके जो शुरुआत थी, जो कर्म भूमि होती है, जैसे हम लोग कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो रंजन मिस्त्री जी के साथ में सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा, या मैं कहूँगा कि शायद हो सकता है मातृभूमि ने आपको प्रेरित किया कि आज आपने हिंदुस्तान नहीं बल्कि एशिया में अपना परपंच, बिहार का, गया की धरती का जो पूरा ध्वज है आपने लहराया। आपके बारे में इतना अवश्य है कि जब जिस जगह पर आपने शिक्षा या बचपन गुजारा, खासतौर से उस जगह की खासियत ये थी कि नक्सलाइट एरिया होने के कारण वहां कोई शिक्षक नहीं रुक पाता था। और शिक्षक ना होने के कारण, जैसे सर ने कहा कि फॉर्मल एजुकेशन को लेकर हमेशा एक सवाल बना रहा, आप ही के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे जिले के लिए, और पूरे उन सभी ज्ञान के या ये कहें कि जो भी लोग थे। इसके साथ में जब आपने पटना में अपना ट्रांसफर हुआ, जब आपने शिक्षा के लिए पटना आए, तो शायद हो सकता है कि आर्थिक तंगी के कारण काफ़ी परेशानियां रही। और उनके बारे में अगर मैं बचपन से अगर मैंने देखा, झांका, तो लगा कि कई जगह ऐसी चीज़ें रही, जैसे कि आपने डीएवी पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया, बहुत अच्छा स्कूल था, लेकिन फीस न देने के कारण छोड़ना पड़ा। आपने करीब 10 बार आईआईटी क्रैक किया। आज के समय में अगर हम बच्चों से बात करते हैं तो एक बार नीट और जेई क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने जिस तरह से
अपने लाइफ को अपने आप को ग्रूम अप किया, तो शायद वो एक एग्जाम्पल था। लेकिन अफसोस कि शिक्षा या कहो फीस न देने के कारण जो फॉर्मल हम लोग कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में या इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप नहीं कर पाए। इसके बाद आपने जो एक्चुअल जो सिस्टम जो एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करते हैं 2016 से, तो आपने एक सबसे पहले एक जैसे कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करता हूं, तो आपके द्वारा लिखी हुई 2-3 चीजें यहाँ पे बताना चाहता हूं। तो एंटरप्रेन्योरशिप किसी लेक्चर या किसी क्लास से नहीं सीखी जा सकती। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई लेक्चर करने से या पढ़ने से या कोई कोर्स करने से आप एंटरप्रेन्योरशिप सीख सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहली चीज है कि लगातार प्रयास और अथक प्रयास, और लगातार असफलता के बाद में जो सफलता का जो प्रयास है, तो वही सबसे बड़ा एक अस्त्र है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, जो कि आपने पूरी तरह से जिस तरह से आपके जीवन में जो चीजें रही वो एक सतत इस तरह का एक एग्जाम्पल रही मैं कहूँगा। इसके साथ में आपने सबसे पहला जो प्रयास किया सामाजिक तौर पर, जिस परिवेश से आप आए उस परिवेश में ही आपने शिक्षा की अलग जगाने के लिए लगातार लोगों को प्रमोट किया। चूंकि दिक्कत क्या थी, वास्तविकता यह है नक्सलाइट एरिया होने के कारण जहां पे आपका जन्म स्थान था, शायद संभावित तौर पर वहां 1 साल 2 साल से अधिक कोई शिक्षक रुक नहीं पा रहा था। तो ऐसी व्यवस्था आपने व्यक्तिगत तौर पर करी। ये आपके लिए जो हम लोग कहते हैं आजकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। 2016 से लगातार आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रयासरत रहे, और जिस प्रयास में आपने कार्य किया, खासतौर से श्री रंजन मिस्त्री जी के लिए इतना अवश्य कहूंगा, एंटरप्रेन्योर बनने के हम लोगों के समय में हर कोई चाहता है। जैसे हमारे इग्नू की तरफ से हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग भी प्रयास करते हैं कि जो भी छात्र हैं वो अपने स्टार्टअप स्टार्ट करें, अपने स्टार्टअप से लेके आए और उसके साथ में आके एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। लेकिन आपने जिस सरल तरीके से एक सोच को अंजाम दिया, और वही सोच जो है आज पूरे बिहार में आपकी फैली हुई है। और इसमें सबसे जो एक सबसे जो जीवंत उदाहरण जिसको मैं कह सकता हूं वो है आपका जो आपने जो पटना एजुकेशन स्कूल, ये एजुकेशन हब का जो कॉन्सेप्ट दिया, और ये जो पटना यूनिवर्सिटी एजुकेशन हब या इनोवेशन हब जो आपने क्रिएट किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल था। क्योंकि ये जो इंक्यूबेशन हब बनाया गया, इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी देख रहा था पूरी तरह से, तो वो जो कॉन्सेप्ट है किस तरह से आपने उसको डेवलप किया, तो वो कॉन्सेप्ट इस तरह से था कि जो भी यहाँ यूनिवर्सिटीज में इस तरह के स्टूडेंट है, चाहे वो एल्यूमनाई स्टूडेंट है, चाहे वो पास आउट स्टूडेंट है, तो उन सभी स्टूडेंट को जोड़ के अगर उनके पास आइडिया है, तो उस आइडिया को हम लोग धरातल पे लेके आ जाए। तो आपने वो इंक्यूबेशन हब बनाया। इसके साथ में अगर मैं आपकी बात करता हूं, तो आप पटना ही नहीं बल्कि तमिलनाडु स्टार्टअप या ऑफिशियल मेंटर हैं आप इंडिया के लिए। इसके अलावा स्टार्टअप उड़ीसा के लिए, तमिलनाडु स्टार्टअप के लिए, एमपी स्टार्टअप के लिए, सिक्किम स्टार्टअप के लिए, BVIC हैदराबाद के लिए। और अनऑफिशियली अगर मैं बात करता हूं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो आपसे प्रेरित हुए हैं, और प्रेरित होने के बाद साथ में आपने जहां भी जिसको भी प्रेरणा दी है, वो आज अपने आप में अपने एंटरप्रेन्योर्स को लेके अपने पूरे समाज में है। तो इतना अवश्य कहूंगा कि खासतौर से जो पटना यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन हब है, वो अपने आप में इस तरह का एक विचार है, मैं कहूंगा, जिस विचार के कारण आपको पटना यूनिवर्सिटी ने सहज हाथों में लिया, और आपकी ये जो पूरी जिसे कहते हैं कि जो प्रयास है या जो सोच है, उस सोच के कारण आपको बहुत से अवार्ड और बहुत सी चीजें आपको प्राप्त हुई। जिसमें अगर मैं बात करता हूँ मेन तो इसमें आप जो यंगेस्ट फॉर्बर्स लिस्ट है इसमें एंटरप्रेन्योर्स की, तो इसमें आपको स्थान दिया गया। इसके अलावा और भी कई अवार्ड्स हैं एंटरप्रेन्योर के लिए। महिला एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा आपको मेंबर रखा गया। तो इस तरह की अनलिमिटेड चीजें हैं।
तो मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं श्री रंजन मिस्त्री जी का कि आप मंच पर आए। और सर, Thank you, Dr. Rajiv. We are really privileged to have Ranjan Mistry ji among us as the resource person today. और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हमारे यहाँ पे जितने आप देख रहे हैं इनमें से हमारा स्टूडेंट भी है, टीचर भी है, हमारा स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर भी है, और रंजन मिस्त्री जी हमारे एक स्टूडेंट भी है इग्नू के. सो दैट्स ग्रेट ऑफ हिम टू एक्सेप्ट आवर इनविटेशन. नाउ ओवर टू मिस्त्री जी, प्लीज. थैंक यू अभिलाष सर, राजीव सर, आपने हमें मौका दिया. बेसिकली मैं तो गया था नाम चेंज कराने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली सर ने मिलवा दिया आपसे और हमारी बातचीत हुई. और मैं इस चीज को लेकर काफी खुश हुआ, क्योंकि मैं बिहार में कहीं भी गया, मैं CUSB सेंट्रल सिटी गया, पटना यूनिवर्सिटी गया और कई और यूनिवर्सिटीज कॉलेज में मैं बिहार में हुआ हूँ, बट जितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके पास से मिला शायद ही मुझे अभी तक कहीं से मिला हो. कि इंक्यूबेशन और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर इतना एग्रेसिव तरीके से या फिर काम करने के लिए मुझे आज तक किसी डायरेक्टर या VC या प्रोवीसी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला. तो सबसे पहले तो इसके लिए थैंक यू कि आपका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस चीज पे था. हम लोग लगभग 2.5-3 घंटे बैठे उस दिन और बात भी किए. इसको वन वे ना करके सर हम चाहते हैं कि इसको हम 2 वे करें, ताकि लोगों का सवाल जो है स्टूडेंट्स का या टीचर का या प्रोफेसर का, वो हमसे सवाल करें, क्योंकि आसपास में वो चीजें जो देख रहे हैं वो जब तक सवाल करेंगे तो उनका रिप्लाई देना ज्यादा बेहतर होगा. वन वे करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं है. अच्छा रहेगा सर. हाँ, वही ठीक रहेगा, वही ठीक रहेगा, क्योंकि आपका जितना अनुभूति है इस फील्ड में, आपसे अनुभूति से बहुत लोग सीख पाएंगे. तो हम तो चाहेंगे कि इसको आप थोड़ा सा इनपुट देके उसको शुरू करिए, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड उसको शुरू किया जाए कि माने बिहार में स्टार्टअप की कैसे, उसको शुरुआत कैसे हुआ, अब इसका स्थिति क्या है, इसका और दिशा किस दिशा में ये जा रहा है, और सरकार का उसमें क्या प्रयास है. उसके बाद लोगों से हम इन्वाइट करेंगे. मुझे लगता है कि वो बेटर रहेगा. प्लीज. श्योर सर. तो अभी मेरी उम्र लगभग 27 साल है, और जब पिछले 15-16 साल से मैं काम कर रहा हूँ बिहार में. जब मैं 14 साल का था तब से काम कर रहा हूँ. बिहार में 2015, शायद आपने सुना है या नहीं सुना है, अगर आप MBA के स्टूडेंट हैं या एग्रीकल्चर डोमेन के स्टूडेंट हैं तो आपने देहात नाम का एक स्टार्टअप सुना होगा. आपने सम्मान फाउंडेशन सुना होगा, इरफान आलम उनके फाउंडर हैं. एक और आपने सुना होगा कि बिहार में कि IIM, ये 2010 से 12 की बात है, आपने सुना होगा कि एक IIM का लड़का जो गोल्ड मेडलिस्ट है, टॉपर है, वो सब्जी बेचने के लिए चला आया है और उसने अपनी ल्यूक्रेटिव जॉब जो है छोड़ दिया है. तो बिहार में जो कल्चर स्टार्ट हुआ स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का, ये 2010 से शुरू हुआ, यही 3 लोगों की वजह से. पहले जो थे वो इरफान आलम थे, दूसरे जो थे कौशलेंद्र थे, और तीसरे जो थे शशांक थे. तो ये तीनों ही पहले, क्योंकि बिहार प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए ज्यादा नहीं जानी जाती है, हमेशा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जानी जाती है. बेसिकली NGO सेक्टर्स में या CSR फॉर्मेट पे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर डोमेन में बहुत अलाइन थे. हमारे बिहार में 90% जो जीविका है वो एग्रीकल्चर पे था. तो ये जितने भी लोग, अब जैसे मैं इरफान आलम की बात करता हूँ, तो आपने सुना होगा कि यहाँ पे इंडिया में पहले वैन सिस्टम, एम्बुलेंस सिस्टम नहीं थी जो ऑनलाइन या उस तरीके से बुला पाए आप. तो 108, 109 जो कॉल, 112 जो नंबर है, वो पूरी पैन इंडिया में इन्हीं का मॉडल दिया हुआ है. आपको जानकर हैरानी होगी कि तमिलनाडु साउथ में जो है 9th और 10th की बुक में इनके बारे में पढ़ाया जाता है, जबकि बिहार के एकेडमिक बुक में या यहाँ के बच्चे MBA तक के बच्चे नहीं जानते कि इरफान आलम है कौन. तो इस तरह इरफान आलम से मेरी मुलाकात हुई. फिर कौशलेंद्र से जी से मैं मिला, जो सब्जी के ऊपर काम कर रहे थे, कार्ट के ऊपर. इन्होंने ही इरफान आलम ही वो बंदे थे जिन्होंने बिल गेट्स को बिहार लाया. बिहार उनको लाया. और यहाँ पे आपने बीच में सुना होगा, आपने बिहार में बीच में सुना होगा 2010-12 से लेकर 14 के बीच में कि यहाँ पे लाल रिक्शे वालों के लिए उनके लाइवलीहुड पे काफी काम किया गया. आपको अखबार में जो है उनके रिक्शे में पानी और उनके अल्टरनेट वे, पीछे बैकग्राउंड में रिक्शे के पीछे जो एड का सिस्टम आया, ये सारा जो है इरफान आलम का लाया हुआ था. तो ये सारे सोशल एंटरप्राइज के एक चैनल थे. तो यहाँ से बिहार में जो है सोशल एंटरप्राइज या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर शुरू हुआ.
और इसके बाद जो है करीबन 2014 में एक संस्था बनाई गई। इन्हीं लोगों ने मिलकर जो है अभिषेक जी जो हैं, कौशलेंद्र हैं, इन्होंने मिलकर बीईए बनाया, बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन बनाया। और इन्होंने बिहार सरकार को, नीतीश जी को जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने प्रपोज किया कि बिहार में बिहार स्टार्टअप पॉलिसी होनी चाहिए। 2014 में उन्होंने प्रपोज किया, 15 में वो चीजें जो हैं थोड़ी अप्रूवल मिली, 16 में ड्राफ्ट हुआ, 17 में जो है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी बिहार सरकार ने लॉन्च किया। तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में 500 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया, जिसमें उन्हें स्टार्टअप को 10-10 लाख रुपए देने थे। और बिहार में 16 इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए, जिसमें मोस्टली जो है कॉलेज में थे, जैसे आईआईटी में, एनआईटी में, निफ्ट में, और भी कई सारे कॉलेज में थे। तो इस तरह करके बिहार स्टार्टअप पॉलिसी आई 2017 में, और उसके बाद से थोड़ा स्टार्टअप्स इसमें दिखना शुरू हुआ बिहार में। फिर भी अभी एक चीज जो गैप था जिसपे मैं काम करना चाह रहा था, कि बिहार में अगर हम बात करते हैं, ये 16 इंक्यूबेशन सेंटर्स जो थे वो मोस्टली आईआईटीज, एनआईटीज और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में थे। और पटना यूनिवर्सिटी या मगध यूनिवर्सिटी, इस तरह के लोकल यूनिवर्सिटीज जो हम रीजनल यूनिवर्सिटीज कहते हैं, उसमें नहीं था। उसका एक रीजन ये भी था कि वहां पे बहुत एफर्ट लगाना पड़ता। और लेकिन जो एक्चुअली जो बिहार में प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम मैपिंग का जो कल्चर है, वो जो वहाँ की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो जो गांव से आ रहे हैं या जो रह रहे हैं बिहार में, उन्हें बहुत पता था। क्योंकि आईआईटी में ऐसा सीन है कि आईआईटी में बच्चे 2 साल के लिए 10th के बाद कोटा चले गए, उसके बाद फिर 4 साल वो आईआईटी में रहे, और उसके बाद फिर वो एमबीए करने चले गए। तो उन्हें प्रॉब्लम मैपिंग नहीं पता, एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं पता कि बिहार में प्रॉब्लम क्या है। तो जब आप प्रॉब्लम मैपिंग ही नहीं करेंगे तो फिर सॉल्यूशन कहाँ से लाएंगे। तो और स्टार्टअप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप प्रॉब्लम मैप करें, कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, लाइवलीहुड में प्रॉब्लम है, या किस तरह की प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर में प्रॉब्लम है। तो ये बहुत जरूरी था। तो इस पे मैं काम कर रहा था, और मैं सेंट्रल सिटी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और इन पूर्णिया यूनिवर्सिटी के साथ थोड़ा काम कर रहा था, जिसमें एक ही सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी में ये हो पाया पॉसिबल, जो भी थोड़ा पेपर वर्क पे ही है, और फुली फ्लेज में वो आया नहीं है। 2019 में मैंने साल भर में लगभग एक साल में मैंने 750 मीटिंग किया, जिसमें करीबन 15 मीटिंग वीसी सर के साथ था। रास बिहारी सर काफी विजनरी थे, डॉली मैम थी, उनके साथ करीबन 40 से 50 मीटिंग थी साल भर में। बाकी स्टूडेंट यूनियन को समझाना, वो कल्चर, वो चीजें, कि इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है इस तरीके से, तो पिछले 4-5 सालों में आप इस साल जो है, जब 23 में जो है, 22 में जब लॉन्च किया गया दोबारा से बिहार स्टार्टअप पॉलिसी रिवाइज करके, तो काफी सारे स्टार्टअप्स आपको देखने के लिए बिहार में मिल रहे हैं। और अब हर जगह ये आउटरीच कर रहे हैं। बिहार में अगर आप देखिएगा तो मौर्या लोक में आप ऊपर में सीधे जाएंगे तो वहाँ पर बी हब का सेटअप किया गया है। आईसीआईटी आईआईटी पटना में इंक्यूबेशन सेंटर फुल फेज में स्टैब्लिश किया गया है, जीरो लैब सेटल किया है गवर्नमेंट के थ्रू। तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट इसमें फंड कर रही है। बिहार सरकार जो है इसमें 10 लाख का फंड दे रही है, जो आपको 10 साल बाद लौटाना है उन्हें, और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, ग्रांट के फॉर्म 50 लाख के आसपास में स्टार्टअप इंडिया फंड कर रही है, तो इसमें 20 लाख के आसपास में ग्रांट है जो आपको लौटाना नहीं है। बट बाकी और चीजें जो है इक्विटी और डेब्ट फंडिंग है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो इसके अलावा महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इस तरह के कई सारे प्रोग्राम जो है बिहार सरकार लॉन्च की है। तो ये पूरा अभी बिहार में माहौल चल रहा है स्टार्टअप कल्चर का। तो अब इसमें ये चीजें हैं कि अगर बच्चे खुद से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, अगर उनको रिस्क लेने का फैक्टर नहीं है, तो वो किसी स्टार्टअप के साथ एसोसिएट हो सकते हैं टीम मेंबर के तौर पे, जहाँ पे उनकी अपनी एक्सपर्टाइज है। तो वैसे भी एक जो है इंटरप्रेन्योर वाला, इंटरप्रेन्योर ना होके इंट्राप्रेन्योर का एक हिस्सा भी वो प्ले कर सकते हैं। बाकी आप लोग अगर कोई सवाल है तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग उसको, ताकि उससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगा कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। थैंक यू वेरी मच मिस्त्री जी। अभी हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के ऊपर कुछ सवाल करना है तो मिस्त्री जी से सवाल कर सकते हैं हम लोग। बहुत सारे हम एकेडमिक काउंसलर यहाँ देख रहे हैं और हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी है। प्लीज प्लीज कम फॉरवर्ड।
क्योंकि आप डायरेक्ट फील्ड से आपको फीडबैक मिलेगा, जो कि मेरा माने इन रियलिटी लोगों के साथ जो काम किए हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो ए सोशल एंटरप्रेन्योर। कुछ देर पहले राधा कुमारी हैंड रेज किए थे, कुछ सवाल करना है तो कर सकते हैं, राधा कुमारी। प्लीज कम फॉरवर्ड, वन साइडेड होगा तो मैंने मजा नहीं आएगा इसका। आशुतोष जी, आशुतोष, आई थिंक आप स्टूडेंट हो। आशुतोष है, राधा कुमारी है, डॉक्टर कीर्ति आई थिंक एकेडमिक काउंसलर है। क्योंकि जो हमारे स्टडी सेंटर वाले उनको तो हम जानते हैं। श्रीति कुमारी सिन्हा, सुप्रिया, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, काइंडली आप सवाल करिए। क्या बात। मुझे लगता है कि पहला इंट्रैक्शन हो रहा है, तो इसीलिए पीपल आर हेजिटेंट। ओके, हमारे स्टाफ में से कोई भी आ सकता है। आदाब सर, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है सर। ये असल में स्टार्टअप से जो है ना लोग घबराते हैं। ये स्टार्टअप जो है ना, ये असल में स्टार्टअप और ये क्या है इंटरप्रेन्योरशिप, ये टोटली जो है ना बिजनेस ओरिएंटेड है। चूंकि मैं खुद जो है इग्नो ऑफिशियल हूँ। मैं सबसे पहले तो मिस्त्री जी का मैं चूंकि बायोडाटा देख रहा था, काफी इंस्पायरिंग है। जैसे कि राजू जी आएगा और हम आर्टिस्ट सर ने जैसे कि बताया, और हमारे फैकल्टी असल में होता यह है कि जैसे कि मैं खुद जो है लिटरेचर से हूँ, तो स्टार्टअप और ये इंटरप्रेन्योरशिप से लोग घबराते हैं कि अरे यार ये कौन सी चीज है, ये तो उनके लिए बिजनेस है या फिर लोग करना चाहते हैं या नए फैकल्टीज है उस पर जो आना चाहते हैं। तो मिस्त्री जी मैं ये चाह रहा था कि जो इको सिस्टम, जैसे आप पटना यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटीज के आप बता रहे थे, जैसे कि बहुत सारा आपने जो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ, आपने ये बताया कि हम जो है ना लोगों को कैसे इसमें जो है ना वो हम ये मेरा क्वेश्चन ये मैं ये जानना था कि उसको उत्सुकता के तौर पे जो है इसको जो है क्यूरियोसिटी कैसे ले आया जा सके, इसमें लोगों कैसे इंटरेस्ट ले वो उसमें, अगर वो कोई अगर चीज वो हो कि हम लोग जैसे लर्नर्स आते हैं, हमारे फैकल्टीज हो, ताकि नए जो बच्चे हैं एमबीए को हो या फिर और दूसरे जो प्रोफेशनल कोर्सेज के जो बच्चे हैं या इसमें जुड़ना चाहते हैं, उनको इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए, या फिर मेरे जैसे आदमी हो उसके बारे में थोड़ा हट के जो है ना लिटरेचर से जो है स्टार्टअप पे या इंटरप्रेन्योरशिप पे जो है वो इंटरेस्ट लेवल पे अगर कोई चीज है कि क्या मतलब यह है कि आपने जो है अपना वो एक्सपीरियंस बताया कि इंटरेस्ट जगा कैसे, वो मतलब यह है कि आपने जैसे कि आपने बताया, तो उसमें हम इंटरेस्ट जगाने के लिए बच्चों को कैसे इसमें प्रमोट करें या जो बच्चे हैं उसमें इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए तो अच्छा रहेगा सर। इसमें क्या है ना आसिफ सर कि बेसिकली इसमें मेजरली है कि आप प्रॉब्लम कैसे देखते हैं। वैसे तो ये पूरा स्टार्टअप कल्चर या एंटरप्रेन्योरशिप है आपके पैशन और इंटरनल मोटिवेशन की वजह से चलता है। तो आपको ये बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि हम कोई प्रॉब्लम को देख रहे हैं और हम उसका सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, अभी बीआईटी के 2018 में बीआईटी के कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिले थे जो सेकंड ईयर में थे, और उन्होंने अपने गांव में या अपने इलाके में, वो लोग समस्तीपुर साइड से आते थे और उधर के ही रहने वाले थे। तो उन्होंने हेल्थ केयर को देखा कि वहां पे अब पटना, वहां ये लोग बेसिकली पटना में रहते थे, आप भी पटना में रहते हैं तो आपको पता है कि अगर कोई पूर्णिया से आ रहा है, उसको डॉक्टर को दिखाना है, तो उसको अपॉइंटमेंट लगाने के लिए मतलब वो आपको तंग करेंगे कि भाई आप पटना में हो, आप लगा दो। तो इन बच्चों को रेगुलर ये चीज प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई मैं पढ़ाई करूं या क्लासेस करूं, एग्जाम दूं, या मैं अपॉइंटमेंट लगाने जाऊं। तो इन्होंने एक प्रॉब्लम को मैप किया कि गांव के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है डॉक्टर से मिलने में या अपॉइंटमेंट लेने में। तो ये एक प्रॉब्लम इन्होंने मैप किया और उससे चीजों को बनाया कि हम जो है क्या एक अपॉइंटमेंट सिस्टम बना सकते हैं जहां पे हम पटना के डॉक्टर को ऑनबोर्ड कर सकते हैं और गांव के लोग गांव से बैठे बैठे जो है उनको आना न पड़े और अपॉइंटमेंट लग जाए।
या फिर इस तरीके की पटना के डॉक्टर जो हैं गाँव में डायरेक्टली ऑनलाइन इलाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कि बेसिक चीज़ों के लिए जो है लोग समस्तीपुर से पटना चले जाते हैं। अब जो चीज़ सिर्फ़ मेडिकेशन से सही हो सकता है, उसके लिए लोग जो है मतलब ₹1000 आने में खर्च करते हैं, ₹1000 रहने में खर्च करते हैं, फिर 1000 जाने में खर्च करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उसको कम करें। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है कि आपका प्रॉब्लम मैपिंग जो है, अगर आपका अपना पर्सनल मोटिवेशन इस चीज़ पे रहेगा कि हम इस चीज़ का प्रॉब्लम एक हमको दिख रहा है और हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो एक तो पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है कि कुछ ब्लॉग्स हैं, कुछ मीडिया हाउसेज़ हैं, जैसे एक है yourstory.com, दूसरा है inc42.com। ये दोनों ही स्टार्टअप की स्टोरीज कवर करते हैं। तो आप अगर उस पे थोड़ी सी अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलेंगी कि आखिर लोगों ने शुरू कैसे किया। और अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो आज उन्होंने 10 साल पहले शुरू किया या 5 साल पहले शुरू किया तो आज कहाँ पहुँचे हुए हैं। किस लेवल पे वो कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, क्या चल रहा है, या किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह के अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो उस तरह की स्टोरीज आपको रेगुलर पढ़ने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। तो बच्चों को आप थोड़ा ये कह सकते हैं कि आप योर स्टोरी की स्टोरीज को देखें, थोड़ा-सा उस पे देखें कि सक्सेस स्टोरीज कैसी आ रही हैं। INC42 को देखें कि कैसे मतलब उसपे स्टोरीज आ रही हैं, किस तरह के स्टार्टअप चल रहे हैं। अब जैसे आपको मैं बताता हूँ, आपने आपके इग्नू पे पेमेंट लगा हुआ है ऑनलाइन के लिए। जब आप एडमिशन कराने जाते हैं या फिर जब भी कुछ भी करना होता है तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। यस यस। तो वो पेमेंट गेटवे जो लगा हुआ है, वो जो प्लेटफ़ॉर्म बना हुआ है वो रेज़र पे के फाउंडर मेरे सीनियर हैं, 6 साल हमारे सीनियर हैं, बीए बीएसवी पुनाईचक से। ओके। तो आज के डेट में मैं अगर 2010 की बात करता हूँ, 2010-12 की बात करता हूँ, तो इंडिया में पेमेंट के बारे में, पेमेंट गेटवे, ऑनलाइन पेमेंट के बारे में कोई सोचता नहीं था। बट उन्होंने ये चीज़ें प्लेटफ़ॉर्म बनाया। आज की डेट में करीबन 80 टू 90% प्लेटफ़ॉर्म जो है उन्हीं का रेज़र पे इस्तेमाल करती है। हम्म। हर चीज़ के लिए, पेमेंट के लिए। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, आप आईएमएस की वेबसाइट पे जा रहे हैं, आप एम्स की वेबसाइट पे जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे जा रहे हैं, तो उन्हीं का पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म यूज़ हो रहा है रेज़र पे, और ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी फिनटेक स्टार्टअप है। हम्म। तो कई जगह पे हम लोग मोटिवेशन यहाँ भी देखते हैं कि हाँ, ठीक है, हमारे कोई सीनियर आए हैं या हमारे क्षेत्र से किसी ने ऐसा किया है। जो मेरा जो मेजरली मोटिवेशन था, उसके 2-3 रीज़न थे। एक तो पर्सनल प्रॉब्लम मेरा कि मैं एजुकेशन करना चाह रहा था और वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा था फाइनेंशियल की वजह से। तो एक पार्ट तो वो था। दूसरा, हमारे गाँव की तरफ हम लोग थोड़े से नस्ल वाले में आते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ें थी, तो वो एक इंटरेस्ट था कि हमें यहाँ कुछ करना है। हमें ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं छोड़ना है, जैसे मैं रह गया वैसे। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि 10th-12th के बाद मुझे एनआईटी मिला था पटना, बट मैं एडमिशन नहीं ले पाया। तो मेरे जितने भी दोस्त थे जिनके पास पैसे थे, वो लोग बाहर चले गए और अकेला मैं पटना में अकेला, मतलब ऐसा समझिए कि मैं एकदम अकेला बैठा हूँ, सामने बात करने के लिए कोई नहीं है। तो वैसी स्थिति में ये चीज़ें थी कि भाई मेरे जैसा लड़का अगर बिहार में पढ़ना भी चाहे, तो उसके पास ऑप्शन हो। तो हम लोगों ने एजुकेशन के साथ पैरेलल काम किया, उस मोटिवेशन के साथ कि अगर बच्चे के पास पैसा नहीं है, तो वो कम से कम बाहर अगर जाना चाहता है पढ़ने के लिए, तो वो कहीं जा सके। तो एक पार्ट ये, और बिहार में भी अगर रह के पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ेगा, या उसकी क्वालिटी जो है एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को हम कैसे ठीक करेंगे, तो ये एक मोटिवेशन था। इसके बाद दूसरा जो मोटिवेशन मेरा था, वो था कि हमारे कुछ लोग जो थे अपने एरिया से, जैसे मैंने ये 3 जो नाम आपको बताए मैंने, शशांक जो देहात है, आप समझिए कि एग्रीकल्चर डोमेन में, एग्रीटेक में शशांक कुमार जो हैं, वो एशिया के सबसे बड़ी स्टार्टअप है, बिहार से है। आप कंकड़बाग जाएँगे, उनका ऑफिस है। जी जी। मतलब एशिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है। तो मोटिवेशन के लिए हम लोग ऐसे लोगों को ढूँढते हैं या देखते हैं कि हाँ, वो हमारी एज ग्रुप में, या उन्होंने कॉलेज की बात शुरू किया या हमारे क्षेत्र से शुरू किया, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अ, रंजन मिस्त्री, जी सर। रंजन जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ। जैसे कि अक्सर होता क्या है, जो हम लोग जानते हैं इंडियन सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, एक होता है गवर्नमेंट सिस्टम, एक होता है अपना पर्सनल या प्राइवेट या इंडिपेंडेंट। मैं आपके सिस्टम को इंडिपेंडेंट सिस्टम मानता हूँ, प्राइवेट सिस्टम भी नहीं कह सकते। आपने ऐसे सिस्टम को मतलब पटना यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन हब तक ले जाने में कितना, कहाँ कहाँ दिक्कतें आई? मतलब एक तुरंत तो ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी आपको 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन दे रहा है, या कोई किसी तरह का, किसी को एक एंट्री लेने से पहले हम लोग खुद अपने सिस्टम से सोचते हैं कैसे होगा। तो सर कैसे, देखिए, थोड़ा अगर चर्चा करें तो। हाँ, बेसिकली जैसे पटना यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन हब पे अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी में नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार भी गया, पर पूर्णिया यूनिवर्सिटी में मैं मीटिंग किया, पाटलिपुत्रा में भी गया।
पटना यूनिवर्सिटी में पहले सबसे प्रॉब्लम कहाँ था ना कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का सब तो कोई जानता ही नहीं ना। यहाँ पे वो कल्चर ही नहीं है या फिर वो टर्म ही नहीं है, मतलब टर्मिनोलॉजी तक नहीं है कि बिहार में कि आप सोचिए यहाँ सिंपल सा चीज है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, बीपीएससी लिखो और या यूपीएससी लिखो और चुपचाप आईएएस बन जाओ और कलेक्टर बन जाओ, एसडीएम बन जाओ। तो सबसे मेजर जो चैलेंज थी कि वो दिमाग में उनका घुसाना। हमारा पटना यूनिवर्सिटी, अगर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर 200 करोड़ फंड भी दे दे, मतलब पटना यूनिवर्सिटी को मान के चलते हैं, इग्नू को फंड भी दे दे, 200 करोड़ मैं देता हूँ, आप यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर बनाओ, तो वो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वो बच्चों के दिमाग में बैठाना पड़ेगा, फैकल्टी के दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप कोई चीज होती है। बात है स्टूडेंट, स्टूडेंट यूनियन, उसके बाद प्रोफेसर, फिर एचओडी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर प्रोवीसी, फिर वीसी को समझाना है। क्योंकि अगर नीचे वाले लोग सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम में वो चीजें बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ, आज के डेट में पटना यूनिवर्सिटी में फुल प्लेज में वो नहीं एक्टिवली काम कर रहा है, क्योंकि वीसी रास बिहारी सर चेंज कर गए और उसके बाद कोविड आ गई, चीजें थोड़ी सी ठप गई थी, फिर से चीजें मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ या वहाँ पे इकोसिस्टम में, बट वहाँ के स्टूडेंट्स के कई सारे स्टार्टअप्स आए। वो लोग बाहर में मतलब स्टार्टअप्स लेकर आए, कुछ एग्रीकल्चर में लेकर आए हैं, कुछ टेक में लेकर आए हैं। तो इस तरह के स्टार्टअप्स आए हैं क्योंकि उनके दिमाग में वो चीजें हमने बैठाई। अब कई बार ऐसा होता था कि फैकल्टी ये कह रहे हैं कि भाई हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फायदा है, क्या इसका पैसा मिलेगा। तो इस पे अब कोई ना तो मेरा पर्सनल फंड था, ना ही गवर्नमेंट इस पे फंड कर रही थी। तो अब इसमें ये चीज एक हो सकता है कि मान लेते हैं कि कोई बच्चा के पास आइडिया आया और वो बच्चा आइडिया एक्सक्यूट कर दिया और आप उसके साथ एसोसिएट कर गया और वो सक्सेस कर गया। मान के चलते हैं वो मतलब अच्छी खासी कमाने लगी, कंपनी अच्छी बड़ी कंपनी हो गई, तो आप उसमें एज अ स्टेक होल्डर जा सकते हैं, आप यहाँ से छोड़कर वहां जा सकते हैं, मतलब एज अ प्रोफेसर के साथ में भी जा सकते हैं या प्रोफेसर एज अ जॉब छोड़कर भी आप उस चीज पे सर्व कर सकते हैं। जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी में बाहर में क्या है कि इंडिया में थोड़ा दिक्कत है, बट बाहर में ये एक चीज है कि जो भी प्रोफेसर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टार्टअप्स में स्टेक होल्डर है, क्योंकि वो उसको सजेशन दे रहे हैं या कंसल्टेशन कर रहे हैं या वो नेटवर्किंग दे रहे हैं। तो बाहर में ये चीजें हैं। अब जैसे आपको एक आईआईटी अभी जस्ट जब मैं सर से मिला था, अभिलाष सर से, तो उसके 2 दिन बाद जो है बिहार इनोवेशन चैलेंज कराया गया था, ज्ञान भवन में था, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कराया था। तो उसमें तीसरे जो विनर हैं वो डॉक्टर शशि हैं। तो उन्होंने पावर एलिवेटर मशीन बनाया है। तो बेसिकली डॉक्टर शशि का बैकग्राउंड आप जानेंगे तो वो 15 साल से डेंटल सर्जन है, वो दांत निकालते हैं बेसिकली। तो जब दांत, अभी तक जो दांत अगर किसी ने भी निकलवाया हो आपको पता होगा कि वो मैकेनिकल तरीके से ही निकलता है, वो हथौड़ा मारकर और वो तोड़कर निकालते हैं, उसके लिए कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। जब ये ऑपरेशन करने जाते थे इनको बहुत वो चीज होती थी क्या इस पे ऑटोमेटिक मशीन बन सकता है। तो इनका दिमाग वहां पे खटका थोड़ा सा और ये इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया चीजों को और इनको ये आईआईटी के प्रोफेसर से मिले मैकेनिकल डिपार्टमेंट में और उनके साथ कलारी सर के साथ मिलकर जो है इन्होंने कुछ पीएचडी के स्टूडेंट्स को उठाए और उनके साथ इन्होंने प्रोडक्ट बनाया और ये तीसरा विनर था बिहार इनोवेशन चैलेंज में। तो यहाँ पे क्या है, रंजन सर, मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा। मेरे बीच में डॉक्टर ओपी शर्मा जी ज्वाइन कर चुके हैं, डायरेक्टर एनसीआईडी इग्नू नई दिल्ली से। मैं सर आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, खुशामदीद। और चूंकि आपसे शायद बात हुई, नायक सर प्लीज। थैंक यू डॉक्टर राजीव। ओपी शर्मा साहब को इस सेशन में हम स्वागत करते हैं। एक्चुअली यू विल बी हैप्पी टू नो डॉक्टर शर्मा कि रंजन मिस्त्री जी जो कि हमारा आज का रिसोर्स पर्सन है, वो 5 साल स्टेट में मेंटर है, स्टार्टअप के मेंटर है वो। जैसे कि आपका बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, हैदराबाद के BHIC इज द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर जो कि बने सोशल एंटरप्रेन्योर जो कि सारे एक्टिविटीज करा रहे हैं। We are privileged to have him with us today. So I would now request you to welcome him and brief him about the activities that ISC in IGNU has been conducting. Please. थैंक यू अभिलाष जी और राजीव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी पहले तो मैं देर से ज्वाइन करने के लिए। इनफैक्ट यहाँ ऐसी मीटिंग्स चल रही हैं कि उनमें मैं आपसे कहा था कि मैं जरूर ज्वाइन करूंगा, लेकिन बस उसकी वजह से नहीं कर पाया। और मुझे लग रहा है कि बीच में हमने रोक दिया रंजन जी को,
क्योंकि मैंने नहीं। सुन रहा था, बहुत अच्छा फ्लो था और बहुत बढ़िया है। जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि आप इतने लोगों को मेंटर कर रहे हैं, उसमें हमें भी मेंटर होने की जरूरत है, क्योंकि हम तो पुराने जमाने के हैं और आजकल जो इस नए जमाने में जो चल रहा है स्टार्टअप के लिए, दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम यू। तो उस कॉन्टेक्स्ट में रियली वी आर थैंकफुल टू यू रंजन मिस्त्री जी, कि आपने ज्वाइन किया और इस तरीके का समय दिया हमारे स्टूडेंट्स को और मोटिवेट करने के लिए, मेंटर करने के लिए, बिकॉज आपका जो एक्सपीरियंस है वो एकदम से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जब कहीं भी किसी के साथ शेयर किया जाता है तो वहां पे वास्तव में आपने क्या देखा और क्या उसके साथ में आपने जो कहते हैं झेलना, या उसको कहते हैं किस तरीके से आपने उसको चैलेंज को ओवरकम किया, वो सब आपका एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि हमारे तरीके के लोग जो हैं वो क्या बात करेंगे कि जो हम लोग आपसे सीख रहे हैं या थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट आई थिंक in that context your experience and your sharing of your learning, that is very useful। और जो आप different types के लोगों के साथ में interact करते हैं, then you come to know what kind of problems, challenges, situations, resources they are facing and how they are overcoming that। because हमारे स्टूडेंट्स के साथ में आई होप डॉक्टर अभिलाष जी ने बताया होगा कि आवर स्टूडेंट्स हैव अ ग्रेट पोटेंशियल इन मैनी सेंसेस। आई वुड लाइक टू टेल यू, एक सबसे बड़ा, क्योंकि आप जानते हैं इस फील्ड में आप हैं, इस एंटरप्रेन्योरशिप में या स्टार्टअप में आने के लिए सबसे बड़ा ये होता है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, कितना आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जिसको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा बहुत सेफ प्ले करना है, जो आपका कंफर्टेबल जोन में चलना है, तो वो आई थिंक दे विल नॉट कम टूवर्ड्स दिस स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि यहाँ सबको पता है इफ यू आर मूविंग इनटू दिस काइंड ऑफ वेंचर देन यू शुड बी रेडी टू टेक ऑल काइंड ऑफ रिस्क, ऑल काइंड ऑफ ट्रबल, ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस, और उन्हीं को पार करके ही आप कहीं जा करके एक बहुत बड़े जो जिसकी हम एक ड्रीम करते हैं कि आई विल बी ए वेरी बिग स्टार्टअप और जिसका बहुत यूनिकॉर्न में और फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो वहां तक पहुंचने के लिए दिस इज ट्रू दैट वील हैव टू दैट ओवरकम दीज ऑल चैलेंजेस। हमारे स्टूडेंट्स में हमने देखा है कि बहुत सारे में या तो वो ऑलरेडी दे आर वर्किंग, सो दे आर अबव दिस ऑल, दे डोंट बॉदर कि मुझे कहीं नौकरी ढूंढनी है, कुछ करना है, दे आर इन दैट स्टेज। They have a lot of experience. They have either worked in some government organization, with some startup, some business, somewhere. So they have experience also. Secondly, उनके साथ में क्या है कि they can take this kind of risk. मुझे आगे जाना है तो जाना ही जाना है. So that kind of potential we are having. Number one. Second thing is very important. We have a very large number of students. Very large number of students, और उनमें से जो हम सबके साथ में काम करते हुए और जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे अभी दे आर कमिंग फॉरवर्ड, बिकॉज इट इज ट्रू दैट इन कंट्री ऑल्सो देर इज ए एनवायरमेंट फॉर दिस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जब वहां पे इस तरीके की कल्चर है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, इस तरीके का एक इकोसिस्टम बन गया, देन दैट इज ऑल्सो एनकरेजिंग देम। And at the same time, we at IGNOU and along with these regional centers, because our strength is regional center also, हमारा नंबर बहुत है, एंड एट द सेम टाइम वी हैव रीच थ्रू आउट द कंट्री। अब जैसे आप देख रहे हैं बिहार में पटना है, दरभंगा है, दीज आर द रीजनल सेंटर, और डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ में कांटेक्ट कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स के साथ में ही नहीं कर रहे हैं। गुड थिंग इज दैट दे आर इनवाइटिंग पीपल लाइक यू who are having this kind of experience and expertise and also resources, because ये सब अगर जब कनेक्ट होगा तो जो आज हम की बात कर रहे हैं कि creating a ecosystem, basically these are the components of ecosystem। ecosystem में internally we have developed something, now we are involving you people, and also once you come in our that enclosure, in our that gambit, then what will happen, आपके साथ में जो नॉलेज है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपका नेटवर्क है, दैट विल आल्सो कम इन आवर कांटेक्ट। और कहीं हमारे स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ेगी, दे विल कम योर कांटेक्ट।
वो आप उनको कहीं गाइड करेंगे, कहीं और दूसरी जगह नेटवर्किंग कराएंगे. सो दैट काइंड ऑफ ecosystem is now developing. In fact, it has developed. Now the need is to strengthen it. For that purpose, I think Dr. Nayak, it is good to listen to Ranjan Mistry first. So my interruption will be good when we listen to him. और बहुत अच्छा है. वी आर रियली थैंकफुल टू यू रंजन जी, एंड देन बी इन आवर कॉन्टेक्ट. और हमारे स्टूडेंट्स के साथ आपको काम करने में आपको भी मजा आएगा, बिकॉज जिस तरीके का एक एंथुसियाज्म है उनके अंदर, लर्न करने का, कुछ करने का जो एक जज्बा है, देन आई थिंक बिकॉज यू नो जज्बा इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम इन दिस फील्ड, दैट जज्बा शुड बी देयर. और वो जज्बा हमने देखा है हमारे स्टूडेंट्स में है, बट ओनली दे थिंक दे नीड राइट काइंड ऑफ गाइडेंस. हमारे यहाँ कमी क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स ऑल टाइम दे आर नॉट विद अस, हमारे हमसे दूर हैं. तो इसलिए हमने आजकल तो ये जो टेक्नोलॉजी का एक अब अच्छा यूज हो गया है, वी गेट कनेक्टेड विद देम टाइम टू टाइम, वी आर इंटरेक्टिंग विद देम, लर्निंग देयर problems, what kind of problems they are facing. Accordingly, we are trying to resolve them, trying to connect them with the right kind of persons, incubators also. Last time भी एक जो सेशन हुआ था इनोवेशन क्लब एट आरसी पटना एंड दरभंगा ने किया था, that was we try to connect with the incubators also. और अगर उस तरीके का होगा तो certainly whatever we are thinking that will go long way. So thank you very much for sparing time. I think let us first listen to you. उसके बाद थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी, then I'll again speak. Thank you, Nayak साहब. Thank you, Sarma Sahib, for your inspiring words. Let me tell you that Ranjan Mistry ji doesn't have any formal educational background like other experts in the field of innovation and entrepreneurship. He discontinued his studies immediately after +2, but luckily, with his own endeavor and hard work, he has been able to be a mentor for the startups in 7 of the states in Bihar, and he is also a member of the innovation and startup clubs of the universities in Bihar, and even he is playing a very important role in promoting women entrepreneurship in the state of Bihar. Over to Ranjan Mistry ji. नहीं, यहाँ मैं एक चीज बीच में बोलूंगा कि आपने जो कहा ना कि बहुत फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, मैंने शुरुआत में यही बात कही थी और वो बात आपने यहाँ प्रूव भी कर दी. बिकॉज जो रिस्क रंजन ले सकते हैं वही स्टार्टअप कर सकते हैं, वही इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, वही मेंटर कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट कि आपने पढ़ाई लिखाई, अब हम लोग इतना पढ़ाई करने के बाद में भी वी कैन नॉट थिंक ऑफ डूइंग दैट काइंड ऑफ कि हमें स्टार्टअप करना है या कोई अपना बिजनेस करना है, क्योंकि उसके लिए माइंड सेट ही बिल्कुल अलग चाहिए. आपको माइंड सेट अलग चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड. फॉर दैट पर्पस दीज फॉर्मल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई थिंक डोंट मैटर. एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पास में ही पलवल है, नियर दिस दिल्ली एनसीआर में. वहाँ के एक जन थे, एक सज्जन थे. वी केम टू नो दैट ही वाज ऑलमोस्ट इलिटरेट. 10th पास होना या फेल होना वो कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं होती है, मतलब हार्डली ही वाज मैट्रिक पास. और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया एंड ही सो सक्सेसफुल दैट ही इज बीइंग इनवाइटेड एज ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन मैनी बिग प्रोग्राम्स, बिग इवेंट्स. क्योंकि उनकी जो स्टोरी है, उनका जो स्ट्रगल है, उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को अलग अलग एडवर्स सिचुएशंस में रहते हुए भी और आज एक सक्सेस के मुकाम तक पहुंचे, दैट इज बेसिकली ए वेरी ग्रेट केस स्टडी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. और वही जो है हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है कि जब ये रंजन 12th केवल किए हुए इस तरीके का आगे बढ़ सकते हैं तो व्हाई कांट आई बी. सो दैट वे आई थिंक यू हैव चोजन ए राइट पर्सन फॉर दिस प्रोग्राम. सो ये तो बहुत एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो गया उसके साथ में. सो नाउ कंटिन्यू रंजन जी. शर्मा सर, मैं बताना चाहूंगा, अभी हम लोगों का जो प्रोग्राम है, हम लोगों ने प्रयास यही किया है. रंजन जी खासतौर से अभी पटना यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन हब है पूरा, उसको हेड कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं. साथ में कई और जो इश्यूज हैं, क्योंकि एक अगर इस तरह के बैकग्राउंड को अगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी सिस्टम में आने से और किस तरह से इशू थे,
तो उसी पे हम लोगों का अभी चर्चा या बातचीत चल रही थी सर। रंजन नहीं, जी, ये बहुत जरूरी है, पर एक चीज यहाँ और कहूँ अभिलाष जी, इनकी क्वालिफिकेशन आपने कहा है, तो कल को कोई दूसरा ये ना कहे कि इनके पास फॉर्मर हायर एजुकेशन नहीं है, सो गेट हिम एडमिटेड इन योर यूनिवर्सिटी। है ऑलरेडी है और हमारे। इनको जो है वो इग्नू के स्टूडेंट भी है, उसी दिन उनके साथ मुलाकात हुआ मेरा। यस यस, गुड, सो प्लीज कंटिन्यू। हाँ, ओवर टू मिस्त्री जी प्लीज। राजीव सर बात कर रहे थे। हाँ रंजन जी स्टार्ट करिए, ठीक है। तो वही चीज मैं बता रहा था कि बेसिकली वो आईआईटी पटना के प्रोफेसर के साथ मिले और उन्होंने वो चीजों को बनाया और फिर चीजों को मतलब प्रोटोटाइप के फॉर्मेट में लाया और वो दुनिया का पहला अभी ऑटोमेटिक मशीन उन्होंने डेवलप किया ये चीजें। तो वो कहीं ना कहीं चीजें हैं कि आप कहाँ पे एगरनेस आपका दिख रहा है, क्योंकि ये अब इसमें हर किसी को ला नहीं सकते क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत है और इट विल टेक टाइम 6 to 7 years, क्योंकि चीजें बनानी पड़ती हैं और उसमें आपको पिसना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्किल सेट आपको देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल पार्ट है, फाइनेंशियल पार्ट को थोड़ा अगर अभी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ कर दिया गया है, क्योंकि हर स्टेट जो है अपनी स्टार्टअप पॉलिसी लाई है, उसमें फंड्स लाए हैं। अभी अगर हम मान लेते हैं कि आपके स्टूडेंट बिहार में स्पेशली अगर बात करें, तो बिहार में अगर कोई बच्चा अगर आइडिया लेके आ रहा है तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकता है स्टार्टअप बिहार में, तो वहां से उसको 10 लाख के आसपास में फंड्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह और भी जगह पे स्टार्टअप इंडिया में वो अप्लाई कर सकते हैं, अटल इंक्यूबेशन के थ्रू जा सकते हैं, तो वहां पे उसको 50 लाख के आसपास में फंड्स मिल जाएंगे। तो अराउंड 50 to 60 लाख के आसपास में उनको फंड्स अवेलेबल हैं। पहले ये चीजें नहीं थी। मिस्त्री जी और एक चीज हम बताना चाहेंगे, जब से शर्मा साहब हमारे उधर दिल्ली में डायरेक्टर बने, ही हैज बीन डूइंग ए लॉट ऑफ वंडरफुल वर्क टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द एंटायर कंट्री थ्रू द रीजनल सेंटर्स। और एक चीज शायद आपको पता होगा, 2021 में उन्हीं के मेहनत से हमारे यूनिवर्सिटी को माने नॉन टेक्निकल कैटेगरी में हाईएस्ट रैंक जो है, नंबर 1 रैंक मिला था इनोवेशन कैटेगरी में। सो दैट्स फॉर योर इंफॉर्मेशन। लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ बार बार आए, सो दैट की जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं इसको थोड़ा सा बढ़ावा मिले। थैंक यू। अभी शर्मा साहब हम लोग ने इसको इंटरैक्टिव मोड में ले रहे हैं, तो वी आर इनवाइटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। और कोई अच्छा है, आप ये बैनर हटा देंगे तो और अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। आप तो हाँ ठीक है ठीक है, बैनर को हटा दीजिए। आप विनोद जी बैनर हटा दीजिए। यस सर। आप तो सबको देख पाएंगे हम लोग। हाँ, और देयर आर, आई कैन सी द लॉट मेनी एकेडमिक काउंसिल स्टूडेंट्स जो बात करना चाहेंगे, तो एनीवन वेलकम प्लीज। सनंद सिन्हा, ललन कुमार, या हमारे कौन है, कमलेश कुमार, डॉक्टर प्रियदर्शनी, विनय त्रिपाठी, एनीवन, आशुतोष आचार्य। हम अरे आप लोगों के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। प्रियांशु भी है, प्रियांशु प्रीतम झा, आप तो स्टूडेंट लग रहे हो, आप प्लीज स्टूडेंट्स को हम एनकरेज करेंगे, आके आप बात करिए प्लीज। स्टूडेंट्स को टीचर्स भी तो चाहेंगे, टीचर्स एनकरेज करेंगे, स्टूडेंट्स आएंगे इसमें। लगता है कि थक गए लोग सुन सुन के। एनीवन एल्स who would like to join? चलिए मैं ही बात करता हूँ। ठीक है प्लीज। रंजन, अगर हमारे स्टूडेंट हैं ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि स्टूडेंट अगर इग्नो के हैं तो सर्टेनली एक चीज़ तो ये हो गया कि हम लोग जो है रंजन को भी अपने उस ग्रुप में ले सकते हैं जो कि बाकी स्टूडेंट्स के साथ में और इंटरेक्ट करते हुए यू कैन कंटिन्यूअसली मोटिवेट देम। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं
इवन कई बार क्या होता है एज ज़्यादा हो जाती है और फिर कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं नहीं है, एंड यू गेट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, लेकिन बिकॉज यू आर नॉट स्टूडेंट, यू आर नॉट रजिस्टर्ड समवेयर, तो आप वहाँ कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपको जब इनोवेशन हब के साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री की कई सारी स्कीम्स हैं। अभी इस समय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का है, या युक्ति का इनोवेशन कॉन्टेस्ट है, या और कई सारी होती है। तो वहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं, वो जाते हैं वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, और कई बार उनको ज़रूरत पड़ती है फर्स्ट हैंड गाइडेंस की कि किस तरीके से आगे हम वहाँ और अच्छा कर पाएंगे। एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप नायक साहब इनको, रंजन को अपना जो इनोवेशन क्लब है उसमें, बिकॉज ही इज स्टूडेंट, आई थिंक ही शुड बी मेंबर ऑफ योर इनोवेशन क्लब। We will make him the member today. हाँ, क्योंकि ये हमारे यहाँ कंडीशन क्या है कि हम चूंकि बाहर के लोगों को कम बनाते हैं, स्टूडेंट्स को ज्यादा लेते हैं, सो बिकॉज यू आर इग्नो स्टूडेंट, सो यू शुड बी पार्ट ऑफ दैट इनोवेशन क्लब का। उसका फायदा क्या रहेगा, एक तो वी विल बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद यू, सेकेंडली कि वहाँ उस रीजन की या इवन ऑल ओवर कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपका जो एक्सपीरियंस है उसका एक बेनिफिट मिलेगा, एंड यू विल ऑल्सो गेट न्यू आइडियाज फ्रॉम देम। क्योंकि कहीं भी इंक्यूबेशन हब की बात करते हैं तो वहाँ मैंने देखा है कि जब हम बात कर रहे हैं बहुत लोगों से, देयर इज ए डर्थ ऑफ, एक कमी है नए नए इनोवेटिव आइडियाज की। पैसा तो सब लेना चाहते हैं कि मुझे पैसा मिल जाए इंक्यूबेशन सेंटर से, लेकिन वो जो पैसा है एक सही तरीके के काम के लिए जा रहा है, सही तरीके के इनोवेटिव सॉल्यूशन के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वहाँ आपको जब इनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे तो यू विल आल्सो गेट आइडिया कि आपको इग्नू के ही बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो, क्योंकि मैंने देखा है कि हर इंक्यूबेशन सेंटर को आपको एक टारगेट भी होता है कि हमें इतने स्टूडेंट्स को करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा को सपोर्ट करें, लेकिन आप हर किसी को तो देंगे नहीं। आपको तो ऐसा तो चाहिए ना कि जो कम से कम कर सकता हो, जिसका आइडिया बहुत अच्छा हो, जो उसको आगे ले जा सकता हो, बिजनेस ऐसी हो जो सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये सब कुछ करने के लिए आपको आई मेक यू श्योर कि हम आपको एक पका पकाया उस तरीके का काम दे सकते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट्स हैं, इनको आप लीजिए अपने इंक्यूबेशन सेंटर में, उनको गाइड करिए, सपोर्ट करिए। तो एक बहुत अच्छा, मतलब इट विल बी ए म्यूचुअल काइंड ऑफ थिंग। और अगर पटना में, आप पटना यूनिवर्सिटी के साथ में है ना? जी सर। जी, तो पटना यूनिवर्सिटी के साथ में नायक साहब ये भी कर सकते हैं कि उन इंक्यूबेशन जो हब है, यू कैन डू सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट ऑल्सो ऑफिशियली अगर पॉसिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये आसान होता है। क्योंकि मेरे पास में जैसे यहाँ दिल्ली से कई सारे इंक्यूबेटर्स ने बात की कि वो हमारे मैंने हैं। अभिलाष सर को मैंने कहा था, बेसिकली अभी स्टार्टअप बिहार जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, तो ये एमओयू आप डायरेक्टली उनके साथ आप कर सकते हैं, वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। हाँ, उनके साथ कर लीजिए, लोकल भी करिए, क्योंकि इनका फायदा क्या रहेगा कि देखिए है, मैं आपको एक बहुत एक अंदर की बात बताऊं, सबको पता है कि जो स्टूडेंट कहीं यूनिवर्सिटी में काम कर पढ़ रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि जैसे ही निकले बाहर कहीं नौकरी मिले। ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है। जब आपके साथ में है 1-2 साल तक, तब तक वो कोशिश करेंगे कि आपके इंक्यूबेशन सेंटर में आएंगे, कुछ नया करेंगे, कि उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है, कहीं रिकॉग्निशन मिल रहा है, और जैसे ही उनको डिग्री मिली तुरंत तो कहीं प्लेसमेंट के थ्रू जाएंगे या कहीं और जाएंगे। उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि बहुत मोटिवेटेड हों, जो अपना काम करने के लिए, क्योंकि मैंने शुरू में कहा ना बहुत रिस्क इन्वॉल्व है इसके साथ में, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, तो हर कोई उससे थोड़ा डरता है। सबसे कंफर्ट जोन होती है कि नौकरी मिल जाए आराम से 9 से 5 की, और इधर उधर मुझे ज्यादा वो नहीं करे, वो सबसे ज्यादा अच्छा समझते हैं। लेकिन जो इसकी इम्पोर्टेंस को समझ जाते हैं स्टार्टअप की को, तो वो तो देखा है मैंने कि आईआईटी वाले भी नौकरी छोड़ करके दे आर कमिंग इनटू स्टार्टअप, क्योंकि वो उसकी इम्पोर्टेंस समझ गए। वो जानते हैं कि इसमें भले ही मैं आज प्रॉब्लम डिफिकल्टीज फेस करूंगा, और थोड़ा अच्छे तरीके से करने के बाद में कुछ समय के बाद में कहाँ होऊंगा, दैट दे कैन विजुअलाइज। जो ऐसा विजुअलाइज कर लेते हैं आगे का कि मैं कहाँ होऊंगा आज के 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, और उसी हिसाब से काम करते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं।
तो आपको क्या होगा कि इग्नू का जो स्टूडेंट आएगा, मैं आपको बताऊं, उनमें से ज्यादातर वो स्टूडेंट होंगे जो कि इस फील्ड में ज्यादा, अगर या तो आएगा ही नहीं स्टार्टअप के लिए, अगर वो मोटिवेट होकर के आपके साथ आ रहा है, कन्विंस हो गया, तो वो आपके इंक्यूबेटर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां से आपको एक सक्सेसफुल स्टार्टअप मिलने की उम्मीद रहेगी। क्योंकि ये नहीं है कि पैसा दे दिया उसके बाद बात खत्म होगी। अच्छा, एट द सेम टाइम व्हाट वी आर डूइंग, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट्स को, तो उनके साथ में हम बहुत सारी मेहनत और करते हैं। वो मेहनत क्या करते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हम उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं अलग अलग तरीके की। जैसे अगर हम कहें कि आइडिया जनरेट कैसे करना है, उसको और आगे कैसे लेके जाना है, प्रोटोटाइप कैसे डेवलप करना है, और अलग अलग जो भी बिजनेस प्लान आपको बनाना है, तो बिजनेस प्लान बनाना है, और वो भी ऐसा बिजनेस प्लान है जो कि सक्सेसफुल हो, जिसमें आपका रेवेन्यू मॉडल क्लियर कट के आ रहा हो, कहाँ से पैसा आएगा, कितना आएगा, कितना खर्च करेंगे, कितना उसे जनरेट करेंगे, कितने दिन में आप उसको सेल्फ सस्टेनिंग बना लेंगे। ये सारे एस्पेक्ट्स को लेते हुए हम उनके साथ में ट्रेनिंग करते हैं। और ये जब सारी ट्रेनिंग जब उन कर लेने के बाद में उनकी जब एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है ना, और फिर उन्हें लगता है कि ना मुझे, फिर उसमें उन्हें फायदा होने लगता है। और एट दैट टाइम अगर उनको कहीं इंक्यूबेटर की सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि देखिए सबको है लगता है कि कहीं से सीड फंडिंग मिल जाए और कोई सपोर्ट मिल जाए तो वो और आगे बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक उस स्टेज पे आपके साथ में उनका आना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी। आपके इंक्यूबेटर में इतने स्टूडेंट्स आए और वो आगे बढ़े, आपको उससे पहले उनके साथ में जो एक तरीके से डेवलप्ड, मेंटली डेवलप्ड, उनको ट्रेंड एक ग्रुप मिलेगा। तो ये एक फायदा आपको भी रहेगा, हमें ये फायदा रहेगा कि हमारे स्टूडेंट्स अगर मोटिवेटेड हैं तो हमें एक इंक्यूबेटर सेंटर अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम क्यों बनाएंगे जब ऑलरेडी बिहार में इतने सारे हैं, उनका भी आपका भी ऑब्जेक्टिव वही है और हमारा भी ऑब्जेक्टिव वही है। हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको गाइड करते हैं, आप उनको और आगे ले जाकर बढ़ाइए। सो दिस काइंड ऑफ आई थिंक एक कोलैबोरेटिव एफर्ट हम लोग कर सकते हैं। और स्पेशली नायक साहब आप इसको प्रमोट भी कर सकते हैं कि वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, कि हमें अच्छे अच्छे आइडियाज चाहिए, अच्छे अच्छे बिजनेस प्लान चाहिए, और हम उनको पहले, क्योंकि हम एकदम से रॉ नहीं देना चाहेंगे इनके लिए, हम चाहेंगे पहले उनमें से एक लेवल का फिल्टरिंग आउट हम कर लें। जैसे अगर हमें 50 मिल रहे हैं तो 50 में से हम पहले अपने लेवल पे छांट लें कि दीज आर दी 10 और 15 जो अच्छे हैं, जिनको हम फिर ट्रेनिंग दें, फिर उनको गाइड करें, और फिर कहें कि नाउ ये 10 या 5 हैं, इनको आप इंक्यूबेटर के साथ में कनेक्ट कर दीजिए। उनको वहां से जो भी और गाइडेंस मिलेगी, फंडिंग मिलेगी, और जो भी मिलेगी वो आगे बढ़ जाएंगे। तो दैट काइंड ऑफ थिंग आई थिंक विल बी मोर सुटेबल। और वो देखिए कि कैसे हम कर सकते हैं। थैंक यू। मिस्त्री जी, और एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जैसे उस दिन हम डिस्कशन के टाइम पे आपको बता रहे थे, इवन CIMT हैज एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू साइन एन MOU विद अस। आपके जो चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है, उनके CA जो है, ही इज वेरी पॉजिटिव एंड वो भी मैंने इसके लिए तैयार है। मैं यहाँ पे शर्मा साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोई एग्रीमेंट साइन करने के लिए उसका फॉर्मेलिटीज क्या है, और कोई RC हमारा रीजनल सेंटर किसी के साथ ऐसे कोई MOU साइन किया है नहीं किया है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। और कोई ऐसे एग्रीमेंट का फॉर्मेट है तो हमारे पास भेजेंगे, तो सो दैट आई कैन टेक अप डिस्कशन विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। नहीं, अभी इस तरीके का फॉर्मेट नहीं है। इनफैक्ट उस दिन आपके साथ बात हुई थी, उससे पहले मेरे दिमाग में था कि हम कुछ ऐसा करेंगे, यहाँ से इनिशिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले ही आपके यहाँ स्टार्टअप बिहार के साथ मीटिंग हुई, तो मुझे लगा कि तुरंत हम यहीं से इसको शुरुआत क्यों नहीं करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कोई MOU का फॉर्मेट हम बना लेते हैं, और वो कॉमन हो जाएगा सबके लिए, आपके लिए भी और बाकी रीजनल सेंटर्स के लिए भी। एंड आई विल ट्राई टू टेक अप्रूवल ऑल्सो कि हम RCs को अलाउ करें कि वो डिफरेंट इंक्यूबेटर्स के साथ में MOU कर लें, और ताकि सबको फायदा होगा। क्योंकि ये फैक्ट है, ये रंजन बताएंगे, आप शेयर करेंगे कि देखिए आपको भी जरूरत पड़ती होगी कि अच्छे आइडियाज वाले आपके साथ में आए इंक्यूबेट होने के लिए। क्योंकि अभी कम से कम मैं यहाँ देख रहा हूँ अपने आसपास में, दिल्ली NCR में
कमी है, इनक्यूबेटर्स बहुत हैं, पैसा लेने के लिए बहुत आ जाते हैं तो मुझे पैसा दे दो, लेकिन आप हर एक को तो पैसा नहीं दोगे, पैसा हर एक को नहीं दे सकते। आपको देखना है वो फंडेबल, उसको फंड करने लायक वो प्रपोजल तो हो, कम से कम उसका आइडिया तो हो जो आगे ले जा सकते हैं। ये तो आप देखते ही होंगे ना, तो वो चीज अभी कमी है और उसमें हम लोग जो है काफी एफर्ट कर रहे हैं, सारे रीजनल सेंटर्स और हम लोग मिल करके। आई थिंक अगर वो रहेगा तो विद द हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ इनक्यूबेटर्स काफी कुछ आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग करेंगे। Thank you very much. Now I invite any question या observation from the participants. यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अभी भी करीब 33 लोग हैं प्रेजेंट यहाँ पे। हम 3-4 लोगों को छोड़ के, जो लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनको छोड़ के और भी बहुत सारे लोग हैं। कोई कुछ सवाल करना चाहेंगे? यहाँ पे आरसी कोरापुट, आरसी कोचिन से भी हम लोग देख पा रहे हैं कि देयर आर पार्टिसिपेंट्स हियर। I am thankful to both the regional centers for taking part in this online webinar. तो उनके तरफ से भी कोई क्वेश्चन होगा या ऑब्जर्वेशन होगा, they are most welcome to come out and give their observations, please. If there is no one to come forward to give their observations, now I request my colleague, Mr. Anand Kumar, Assistant Registrar, to propose the formal vote of thanks. Anandji, please. थैंक्स सर, थैंक्स रंजन सर, आप शॉर्ट नोटिस पर आए और काफी अच्छा आपका लेक्चर्स रहा, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग ऐसे ही, हम लोग ऐसे जुड़ते रहे और कुछ नया लोग सीखें। जो नए इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो आगे आने वाले थे उनको जरूर उत्साह मिला होगा आपसे जो बातें आज हुई उससे देख करके, सुन करके। मैं हेडक्वार्टर से जो हुए डॉक्टर ओपी शर्मा सर का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपना व्यस्त समय में से हमें समय दिया और इस कार्यक्रम में जुड़े। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजीव जी सर का, जो दरभंगा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं उनको मैं आभार प्रकट करता हूं और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूं। हमारे स्टाफ जो प्रत्यक्ष अप्रोच रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुड़े हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। थैंक यू। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार, फिर एक बार मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी। थैंक यू। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू।